بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشتیاق بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز مبصرہ۔ آج ہم جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کے حوالے سے، عمران خان کے لانگ مارچ اور اس کا کیا نتیجہ آگے جا رہا ہے، اور عمران خان کے لانگ مارچ کے دوران جو اٹیک کیا گیا، جو دہشت گردوں نے جو اٹیک کیا یا ٹارگٹ کلنگ اٹیک تھا، ان تمام ٹاپکس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی، اس وقت ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے، بڑے مشکل حالات ہیں، اور یہ حالات جو ہے وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں جن کو ہم لوگوں نے منتخب کر کے اسمبلی میں اس لیے بھیجا تھا کہ وہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو انہوں نے آسانیوں کے بجائے مطلب عوام کو مختلف بیانیے گڑھ کر ان کے اندر عوام کو لگا دیا۔ اسٹیبلشمنٹ پہ مسلسل تقریباً تمام پارٹیاں جو ہیں وہ بلیم کرتی رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ایسا کوئی مطلب فیصلہ نہیں کیا، کوئی صفائی پیش نہیں کی کہ آئندہ کے لیے ان الزامات لگانے والے جو ہیں ان کا منہ بند ہو جائے۔ اس وقت آپ ایک غور کر لیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا جو تقرر ہے وہ آئین کے مطابق، آرٹیکل کے مطابق، رول کے مطابق میرٹ کے بنیاد پہ ہونا ہے، اور اس میں کسی کو ماضی میں سپرسیڈ کیا جاتا رہا، لیکن چونکہ میرٹ کا تو یہ مطلب ہے کہ کسی کو سپرسیڈ نہیں کیا جائے گا، اور اگر وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہیں تو وہ کسی بھی صورت میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو کسی کو سپرسیڈ کر کے وہ میرٹ کی جو درجیاں ہیں، میرٹ کی درجیاں بخیر دیں، اور وہ ایک غلط تاثر جو ہے وہ قوم کے اندر چھوڑ دیں، ملک کے اندر چھوڑ دیں، انٹرنیشنل لیول پہ چھوڑ دیں۔ تو دوسری یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی کی رول پلے کرنے والے سیٹ ہیں، عہدیدار ہیں، ان کے فیصلے ملک سے باہر بھی ہوتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے اندر یہ فیصلے ہونے ہیں، وہاں سے بھی حمایت حاصل کرنی ہے کہ کون آرمی چیف ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا افسوسناک پہلو ہے کہ جو ہمارے غلام ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ہم اپنے طور پہ اپنے ملک کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تمام ملک کے اندر غربت بھی ہے، بےروزگاری بھی ہے، مسائل بھی ہیں، مہنگائی بھی ہے، لیکن کسی بھی ملک کو اپنے ملک کے فیصلے کے حوالے سے جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے، تو وہ نہیں ہے، بدقسمتی ہے۔ ابھی جو پرائم منسٹر پوری ٹیم کے ساتھ لندن میں گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف، مسلم لیگ نون کے سربراہ، تو ان سے مشاورت کا انہوں نے اسپیشلی اس دورے کو نام دیا کہ ان سے مشورہ کیا جائے گا کہ کون سا بندہ جو ہے وہ جنرل کے عہدے پہ چیف آف آرمی اسٹاف ہونا چاہیے۔ تو کیا ہمارے آئین کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ ہماری جو الیکٹڈ جو گورنمنٹ ہے، شہباز شریف وزیر اعظم، وہ سرکاری دورے پر صرف ایک ایسے شخص کے پاس جائیں کہ جو بڑی قداور سیاسی شخصیت ہیں، جن کا اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون کے وہ سربراہ ہیں، لیکن آئین نے، عدالت نے انہیں جو ہے ایک قسم کا نااہل کیا ہوا ہے، تو ان سے خصوصی طور پہ ایک مشاورت کے لیے یہاں سے ہمارا وفد جاتا ہے وزیر اعظم کی قیادت میں، اور خرچہ جو ہے وہ قومی خزانے سے جو ہے وہ پیسے وہاں سے جائیں گے، اور صرف مشورے کے لیے۔ عجیب بات ہے کہ ایک سیدھے سادے معاملے کو کمپلیکیٹڈ بنا کر آخر یہ حکومت کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ میری نظر میں تو وہ آرمی چیف جس کو بھی بنانا چاہتے ہیں، اس کی نظروں میں اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں لوگ جو ہے وہ آپ کو نہیں آنے دے رہے تھے، اور ہم نے
बड़ी भाग दौड़ की और आपको जो है हमने आर्मी चीफ लाया है ताकि वो आइंदा के लिए उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। सपोर्ट तो लीगल सपोर्ट जो है वो किसी भी आर्मी चीफ को, किसी भी हुकूमत को, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आर्मी जो है वो खुद मार्शल लॉ भी पाकिस्तान के अंदर आए हैं, फिर मार्शल लॉ हो जाए वो भी बेहतर है। जब पीछे बैठ के कोई फैसले करने हैं तो फिर फ्रंट पे आके फैसले किए जाएं। फिर जो भी लीगल जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, जब वो जाते हैं वो कहते हैं जी हमें तो अदारों ने काम नहीं करने दिया। ये मुल्क का नाम इससे रोशन नहीं हो रहा, मुल्क के अंदर इससे गलत असर जा रहा है। पाक आर्मी एक ऐसा इदारा है जिसने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की, इस मुल्क के लिए अपने जानों के नजराने पेश किए। समझ ये नहीं आ रही है कि क्या ये सियासतदान उन्हें मशकूक बना रहे हैं या वो ऐसा इक़दाम कर रहे हैं जिससे उनकी असलियत जो है वो वहाँ पे जानबदारी नज़र आ रही है। तो ये अवाम को सियासतदान काइंडली बेवकूफ़ ना बनाएं। जिसने भी आर्मी चीफ बनना है वो जनरल है, वो सीनियरिटी लिस्ट में है, उसकी मेहनत है, वो वहाँ तक पहुँचा तो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन जाएगा। तो ये उसकी अपनी एक स्ट्रगल है और वो यकीनन जो भी बनेगा मुल्क के लिए बेहतरी सोचेगा। इस ओहदे तक वो पहुँचा, अल्लाह ताला ने उसे पहुँचाया तो वो मुल्क के लिए बेहतर सोचेगा। तो ये भी आवाम को खामखा का जो असल इश्यूज़ हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, अवाम के मसाइल हैं, मुल्क के अंदर जो बदअमनी है, चोरियाँ डकैतियाँ हैं, मतलब हर थाने की हदूद में रिकॉर्ड चेक करें तो सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं नज़र आ रही है। तो ये खामखा का हुकूमत ने जिन चीज़ों पे फोकस करना है या जिन चीज़ों के लिए हुकूमत को आगे अवाम तवक्को रखते हैं उसके बजाय उलझा दिया गया। इमरान खान का लॉन्ग मार्च उनके ऊपर जो किलिंग जो टारगेट किलिंग अटैक था उसके बाद जो है वो कुछ दिन ख़त्म हुआ, फिर दोबारा जो है वो अपनी एक रफ्तार से इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। हुकूमत जो है कभी हाई कोर्ट में जा रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट में लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। तो ये यहाँ भी हुकूमत अपनी कमज़ोरी जो है उसको शो कर रही है कि लॉन्ग मार्च होने दें, अवाम जो है उसको देखा जाए कि अवाम क्या चाहते हैं, उसके बाद इदारे जो है वो कोई बैठ के फ़ैसला करें। लेकिन जो हमला हुआ वो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर इसके ऐसा अच्छा तासर नहीं जा रहा है। ये बड़ा गलत हुआ कि एक जो पार्टी का सरबराह है, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का, जिसकी तकरीबन 4 यूनिट के अंदर बड़े बिग यूनिट में जिसकी गवर्नमेंट है, पंजाब, KPK, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, तो उस पार्टी के सरबराह को वहाँ पे कोई बंदा जो है वो जाके अटैक करता है और उसको कुछ भी रंग दिया जा रहा है। और फिर FIR क्योंकि नहीं काटी जा रही है, जो भी मुद्दई जो है, हमने जो कानून का मुताला किया तो उसमें जो मुद्दई है वो किसी हद तक जिसको इल्ज़ाम लगाता है उसके ख़िलाफ़ जो है इतने बड़े वाक़ये की FIR होनी चाहिए और विदिन वीक उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए FIR के बाद। और अगर इल्ज़ाम लगाने वाले ने गलत पर्चे का अंदराज किया है तो उसके अगेंस्ट FIR हो कि उसने इतने अहम शख्सियात को ब्लेम किया खामखा का। तो ये इस वक्त जो है, मैं तो ओवरऑल ये कहूँगा कि कोई भी जमात जो है वो मुल्क के बारे में नहीं सोच रही है, अवाम के बारे में नहीं सोच रही है। सब अपना अपना सियासी बयानियाँ बनाकर, गढ़ कर, ऐसा मसनूई उसको रंग देकर मतलब अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अवाम का जो बुनियादी मसला है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं अवाम के, यहाँ तालीम जो है वो भी बहुत महंगी है, हर किसी के बस में नहीं है कि वो तालीम हासिल कर सके। यहाँ पे इलाज मुआवजा जो है वो भी अवाम की, आम आदमी की पहुँच से बाहर है। और यहाँ जो किसी भी घर का जो बजट है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से तकरीबन लोग जो हैं वो बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। अस्पतालों में ठीक इलाज नहीं हो रहा, वहाँ पे स्टाफ कंप्लीट नहीं है।
स्कूल जो हैं एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हुकूमत जो है वो हर जो लोकेशन है उसके अंदर बिल्डिंग नहीं बना रही है। तो बेरोज़गारी का एक तो बहुत बड़ा रेला है, इल्ज़ाम है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो इस वक्त ज़रूरत के पेश नज़र सर्वे के करके हर लोकेशन के अंदर एक गवर्नमेंट का अच्छा स्कूल हो। उसके बाद अगर शौक़ से कोई प्राइवेट स्कूल में जाता है तो वो बेशक जाए। अब प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं उनकी अपनी मनमानियाँ हैं, अपने तरीक़ाकार हैं, उससे भी अवाम बेबस मजबूर हैं कि तालीम भी हासिल करनी है। उनके जो गैर कानूनी जो अहकामात हैं या उनके जो मुतालबात हैं उनको भी पूरा करना है। तो मैं यही कहूँगा कि खुदारा हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, वो अपनी सियासत न बचाएँ बल्कि अवाम को बचाएँ। जब वो अवाम का सोचेंगे तो अवाम भी उनके बारे में सोचेगी। अवाम से भी ये अपील है कि वो भी किसी के हाथों में ना खेलें, बल्कि अपना ज़ाती एक उनका मोटो होना चाहिए, उनका ज़ाती एक मकसद होना चाहिए कि वो जलसों में जाएँ, जुलूसों में जाएँ, लेकिन कुछ मकसद लेके जाएँ। खामख़ा का मतलब इधर भी नारे, उधर भी नारे, एक पार्टी का दूसरी पार्टी में इस तरह जो गैदरिंग हर जगह पे बनाई जा रही है। अभी आगे इस्लामाबाद जो धरना दिया जाएगा तो उसके लिए जो है पीटीआई के तमाम जो सरबराहान हैं वो सूबाई लेवल पे वो हर ज़िले का विज़िट कर रहे हैं और वहाँ से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और वहाँ के जो पार्टी के जो सीधा लोग हैं उनके ऊपर सिर्फ ये जिम्मेदारी डाल दी जा रही है कि कौन ज़्यादा बंदे लेके आएगा, यानी कि बस और कोई मतलब किसी का वो नहीं है कि उसने क्या करना है या उसने अवाम के लिए क्या किया है या वो आए हैं तो वो मसाइल मालूम करते नहीं। यहाँ अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि कौन बंदा कितने बंदे जो है धरने के अंदर लाएगा। तो इस किस्म की सियासत ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और इसमें जो है आम आदमी नहीं बल्कि जो ख़ास लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका हाथ है। वो मुल्क की मैशियत को ऐसे ही तबाह किए जा रहे हैं। मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी हवाले से आप हॉस्पिटल का, स्कूल का, जो इदारे जो है माशी तौर पे मुल्क को ऊपर उठा सकते थे, वो इदारे जो है वो बैठ चुके हैं। उनके बारे में कोई गौर व फ़िक्र नहीं है। पीआईए का अदारा जो है वो बैठ चुका, स्टील मिल जो है वो बैठ चुकी। ऐसी तरह जितने भी ऐसे सेक्टर थे बिज़नेस के, तो वो जो हैं वो उनका ग्राफ जो है वो माइनस में जा रहा है। तो ऐसे हालात में जो गैर के मुल्क के जो ताजिर हैं, वो इस मुल्क के अंदर आकर क्या सरमायाकारी करेंगे? तो ये सब एक अवाम के साथ खेला जाने वाला